Hello children, today we are going to start with chapter 6, that is from trade to territory. So in this chapter we will study about mercantilism, Portuguese in India, Dutch in India, British, French, right? जो India आए थे and what they did, how they established the company rule in Bengal. We will study about the Carnatic War, now war with Marathas, claim of paramountcy, company administration, and your rise of big colonial power and Indian civil. So let's talk about the mercantilism. So in 18th century, European trade had become very important. बहुत सारे scholars थे, kings थे, they were seeking to increase their wealth. The position of wealth was regarded as necessary for the greater national power, and what they did, the influence in the world. New trade routes had already been discovered. नए trade route discovered हुए, right? And what happened? And Europeans considered it necessary to gain wealth to trade. So mercantilism एक थ्योरी है जो क्या सजेस्ट करती है गवर्नमेंट्स को कि आप प्ले करो ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनीज. मतलब आपका काम है कि आप एक ग्रेटर रोल प्ले करो जो भी इकोनॉमी में, जो भी हमारी इकोनॉमी है उसमें. So mercantilism in the short time came to be associated with building empires, and it was considered necessary for the emergence of imperialism and even small European countries. जैसे पोर्टुगल्स थे वो किस में engaged हुए, गेस्ट ऑफ और पावर टू सिक्योर व्हाट, रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. फिर पोर्टुगीज आते इंडिया में. इन क्वेस्ट ऑफ द मर्सेंटलिज्म पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू रीच इंडिया. फुटस्टेप्स ऑफ वास्को ड गामा 1498 में आते हैं. ट्रेडर आए थे, मालाबार कोस्ट पे आते हैं साउथ इंडिया में और अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश करते हैं कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव पे. पोर्टुगीज क्या करते हैं, दे हैव टेकन ओवर दीव इन 1509, गोवा इन 1510, and soon they captured Calicut, and what they did, they gained control of what, Hooghly and Chittagong. Portuguese were able to establish their hold initially due to navigation skill, disciplined soldiers, and able administration. And they were first to control Indian Ocean and seas. Trade wars. All the European companies were in high competition now. They all bought same things. ये क्या लेके आए? Fine quality of cotton and silk, पेपर, क्लोव्स, कार्डमन्स एंड सिनेमन. मतलब स्पाइस का ट्रेड कर रहे थे. वो यहाँ से खरीद के ले जाते थे कम प्राइस में, वहां पे जाके उनको ज्यादा प्राइस में बेचते थे, उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, राइट. फिर डच आते हैं. डच जो है दे अट्रैक्टेड स्पाइस मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड दे अंडरटुक सेवरल वॉयजेस ऑफ दिस रीजन. Dutch East India Company was formed in 1602 and important factories were located here at Masulipattnam, Pulikat, Surat, Karikal, Patna, Balasore, Kochi. And what they did, they exported cotton, silk, and molasses, opium, India. The Dutch succeeded in establishing their monopoly in the spice trade. और किसके थ्रू करा? 17th century में. And they established trade link between India and Iceland of Far East. इन्होंने कमांड करी पेपर की, स्पाइस ट्रेड की in the islands of Sumatra, Zana and Moluccas. They also succeeded in turning the English out of Amboya, one of the spice islands, जो आपका 1623 में. While the Dutch were expanding their trade in India और the islands of Far East, इन्होंने क्या करा? ये अपोज कर रहे थे डच की गवर्नमेंट रूल. Why? Because they stressed on maintaining its control and the affairs of the company. British in India, Sir Francis Drake, a British navigator, undertook a voyage round the world in 1579. Completion of this voyage and this victory of the English over the Spanish Armada in 1588. What they did, they encouraged the people of England to undertake voyage of the eastern world, and the English Queen Elizabeth also encouraged many seafarers like James Lancaster, John Meadowhall, and Captain Rem. On 31st December 1600, Queen Elizabeth granted East India Company a royal charter in giving its sole right to the trade with East. Royal charter meant that no other trading groups in England could now compete with the East India Company. Company now had the right to undertake voyages to a new unknown markets from where it could buy goods at the cheaper price. और उसको sell back भी करेगी Europeans को at higher prices, and it undertook early voyages to Sumatra, Java and Moluccas. 1608 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फैक्ट्री स्टैब्लिश करी इंडिया में. इन 1630 में मुगल एम्पर जहांगीर, उन्होंने एक फरमान
इशू करा और क्या परमिट करा इंग्लिश को, टू स्टैब्लिश फैक्ट्री परमानेंटली एट, सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश करी गई, सूरत पे, फिर मद्रास, बॉम्बे एंड फिर फ्रेंच आते हैं. व्हाट दे डिड, दे रोट अ नेम कंपनीज दी इंडीज ओरिएंटल. और कब नेम करा था, 1664 में फर्स्ट फ्रांस फैक्ट्री थी एट सूरत. फर्दर फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश एज मसूलीपट्टनम, पुंडुचेरी, माले, चंद्रनगर, कारिकल, बालासोर एंड सूरत एंड मॉरिशस. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया. और एक जो ईस्टर्न आइलैंड था, इससे रिजल्ट हुआ व्हाट, फियर्स कंपटीशन एंड रिवाइवरी. ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल इन ट्रेड. और ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स क्या करना चाहते थे, कमाना चाहते थे. नाउ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल की 1650 में, when the Mughal emperor allowed the company to settle in Bengal and trade free of duty on annual payment of 3000 taka. Right? फिर ट्रेड एक्सपेंड हुआ, कंपनी परसुएडेड ट्रेडर्स टू सेटल नियर द फैक्ट्री और 1696 में बिल्ड करा फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. 2 years लेटर दे ब्राइब टू मुगल ऑफिशियल और इन्होंने जमींदारी राइट दे दी ओवर 3 विलेज, लेटर डेवलप्ड इनटू सिटी ऑफ कोलकाता. 3 विलेज आपको मैंने बताए थे कौन कौन से थे. एंड कोलकाता वॉज लेटर कॉल कलकत्ता, नाउ कोलकाता. और इनके पास इनको राइट मिला कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो. फरमान भी मिला कंपनी को. फिर मुर्शिद कुली खान जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा. कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 बंगाल नवाब asserted their power and autonomy. So Murshid Quli Khan, they followed Alivardi Khan and Sirajudaulah as the Nawab of Bengal and they demanded large tributes to the company right. Company opposed them and they continued और continue करा. फिर आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है. पोर्टुगीज शिफ्टेड फिशिंग विलेज ऑफ बॉम्बे एज डॉरी, सॉरी डॉरी में दे देते हैं टू द चार्ल्स सेकंड टू पोर्टुगीज प्रिंसेस. राइट. फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है 1756 में, सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया जाता है. And company tried to help, and then company tried to help of one of his rival become Nawab. And he asked the company to keep away from the politics, stop building forts and pay revenues. After the talks failed, what happened? The Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factories at Qasim Bazar and captured the company's official. उनको एक warehouse में lock कर देते हैं and they disarmed all Englishmen and they blocked all the English ships. And the company official in Madras sent force under generalship of Robert Clive. ठीक है. जो सिराजुद्दौला थे वो कमांडर थे and they promised to make his Nawab. In 1757 Robert Clive defeated सिराजुद्दौला in the battle of Plassey. फिर battle of Buxar होता है. Puppets were not as helpful as the company wanted. So Mir Jafar failed to meet company demand. और मीर कासिम जो उनके क्या थे, मीर कासिम क्या थे, सन इन लॉ थे, मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड थे, उनको नवाब बना दिया गया. एंड ही चेक द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस ब्रिटिश एंड अबॉलिश टैक्स. जो भी इंटरनल ट्रेड पे टैक्स थे उन्होंने वो हटा दिए. मीर कासिम ने मॉडर्नाइज करा आर्मी को और उन्होंने जो फाइनेंस थे बंगाल के उनको भी इम्प्रूव करा. सो मीर कासिम एंटर्ड इनटू अलायंस विद द मुगल एम्परर सालम सेकंड, नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला, and they fought with the British forces in October. But जो combined forces थी, they were defeated by the British as a conquest. जो Treaty of Allahabad थी, वो कब साइन होती है, 1765 में. And the Mughal emperor granted Diwani the right to collect revenue from the Bihar and Bengal. फिर उड़ीसा और उसको प्रोविंस ऑफ बंगाल कहते हैं, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड व्हेन मीर जाफर डाइड, मीर जाफर की कब डेथ हो जाती है, 1765 में. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब देमसेल्फ एंड द रेवेन्यू वाज नाउ used to purchase cotton and silk textile. And जो कॉस्ट था कंपनी का फोर्ट्स बनाने का, ऑफिसेस बनाने का, वो सब कौन मीट करेंगे, कंपनी के ट्रूप्स मीट करेंगे. Each of the servants began to have vision liking Nawabs of the company, more power, authority. Robert Clive himself amassed a fortune in India and not all officials succeeded in making money like Clive. लेकिन बहुत सारे मर भी गए थे early due to some disease and war. फिर एक्सपेंशन होता है कंपनी रूल बियॉन्ड द बंगाल. सो द कंपनी अपॉइंटेड गवर्नर जनरल टू रूल ओवर द कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी. गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ व्हाट, बंगाल. तो वॉरेन हेस्टिंग क्या बन जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं, जो 1773 से 1785 तक.
And Governor General also looked for the expansion of the British rule. 1781, Britain lost the American colonies, and what they did, they gained the Indian colony, and they were regarded as the jewel in the crown, right? So the policy of expansion, that was the company used variety of political, economic, and diplomatic methods, or it rarely launched a direct attack on what? Unknown territory. After the Battle of Buxar, 1764, what happened? Company appointed residents in Indian states, and they were political or commercial agent, and the company official began to interfere in the internal affairs of Indian state. Now focus कर्नाटक वॉर, ठीक है. कोस्टल स्ट्रिप जो है आपका प्रेजेंट डे तमिलनाडु, वहां पे कर्नाटक रीजन होता था, और उसको कौन रूल कर रहा था? निजाम ऑफ हैदराबाद. 3 वॉर्स हुए 1746 से 1763 फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, जिसे हम कर्नाटक वॉर कहते हैं, ठीक है. फ्रेंच के गवर्नर थे जिनका नाम था ड्यूप्लेक्स. इन्होंने मद्रास को कैप्चर करा, द ब्रिटिश पोसेशन, एंड मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश एज अ प्लेस ऑफ सेटल पार्ट ऑफ पीस सेटलमेंट इन यूरोप, right? And the second Carnatic was fought on the issue of succession of throne, and the British and France, they supported what? Different candidates. ठीक है. जो थर्ड वॉर था वो 1763 में होता है as a reaction to the 7-year war in Europe, and the French were defeated in the Battle of Vitry at the end of the war in Europe. ठीक है. और क्या हुआ? ब्रिटिश को पुडुचेरी और चंद्र नगौर फ्रेंच को वापस दे दिया, एंड द गवर्नर जनरल जिनका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली, दे इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, एंड द कंपनी वाज फोर्स द स्टेट्स इनटू अलायंस, एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ हिज अलायंस, जो इंडियन रूलर्स थे, दे हैड टू डिसबैंड हिज ओन आर्मी, कि वो अपने ही आर्मी को डिसबैंड करेंगे, and in this way they were to be protected by the company if the Indian rulers failed to make payments. जिनकी जो टेरिटरी है वो उनसे वापस ले ली जाएगी. भाई अगर आप पेमेंट नहीं दे पाओगे तो आपकी जो टेरिटरी है वो आपसे वापस ली जाएगी. नाउ वॉर्स विद मराठास. फिर मराठास के साथ क्या होती है? लड़ाई होती है विद द डिफीट विद द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1765. मराठास का ड्रीम क्या था? कि वो दिल्ली को रूल करेंगे, right? And they were divided to many states under different chiefs, sardars, जैसे सिंधियाज, होलाकर्स, गैकवाड्स एंड भोसलेस था. These chiefs were held together in a confederacy. और किसके अंदर थे? पेशवा के, right? Who was an effective military and administrative head. Instant power struggle took place between Maratha chiefs from the beginning of 1770, and the company wanted to control, and they finally destroyed Maratha power. So the British took advantage of their disunity. इससे क्या हुआ? 3 एंग्लो मराठा वॉर्स होते हैं. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है आपका 1775 से 82, बिकॉज ऑफ द सपोर्टिंग रघुनाथ राव बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट माधव राव. यहाँ पे क्या हुआ था? इशू करा गया था सक्सेशन ऑफ थ्रोन टू पेशवा. फिर बाद में ट्रीटी हो जाती है, पीस ट्रीटी जाती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालाबाई. ब्रिटिश ने क्या करा? फिर रिकॉग्नाइज करा माधव राव सेकंड को एज द पेशवा, राइट. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 05 तक. ये मराठा चीफ सिंधियास के बीच में हुआ था, एंड दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, कि हम सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है. इसने क्या हुआ? मराठा पार को क्रस्ट करा, एंड देन द पेशवा बाजीराव वाज रिमूव, और उनको कहाँ भेज दिया गया? बिथू नियर कानपुर विद पेंशन. द ऑफिस ऑफ द पेशवा वाज एबॉलिश्ड, और जिनकी टेरिटरीज थी वो एनेक्स हो गई बाय द कंपनी टेरिटरी. फिर द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी. अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग a new policy of paramountcy was intended, and the authority के जो थी paramountcy की वो क्या थी? सुप्रीम थी, right? Annexing an Indian states was justified. Several rulers resisted against this policy, and Rani Chanman, a small state of Kittur, जो आपका present day कर्नाटका में है, company feared that Russia might expand across Asia and entered India, and the British fought a prolonged war. और किसके साथ करा? अफगानिस्तान के साथ between 1838 to 1842, and what they did, they transported their arms through Sindhs. फिर वो कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, इनडायरेक्ट कंपनी रूल कहाँ? अफगानिस्तान में, and the sixth state of Punjab was annexed by महाराजा रंजीत सिंह. फिर क्या होता है? उनके डेथ के बाद what happened? The struggle for the throne ensured, and his youngest son Kalip Singh was placed on the throne. फिर वॉर होते हैं, पंजाब वॉज एनेक्स टू द कंपनी. फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, मतलब लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे, 1848 से 56 he declared that if any Indian ruler of a department
subsidiary state die without a male heir. अगर किसी का कोई मेल हायर नहीं होगा, मतलब हेरिडिटरी थी यहाँ पे पोस्ट और मेल हायर नहीं होगा, तो उनकी क्या करा जाएगा, उनके किंगडम को ले लिया जाएगा, क्योंकि अडॉप्टेड चाइल्ड को वो किंगडम नहीं मिल सकता। तो वी हैव सतारा, संभलपुर, उदयपुर एंड नागपुर, झांसी, जो इसी पॉलिसी के थ्रू, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू ही क्या कर लिया गया था, अनेक्स कर लिया, क्योंकि कोई इनका नेचुरल हायर नहीं था। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिनको हम प्रेसिडेंसीज कहते थे। 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, सबके अपने अपने गवर्नर थे, एंड द हेड जो होता था आपके प्रोविंसेस का, वो गवर्नर जनरल होता था। उनको सेवरल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा था, और जो प्रिंसिपल ऑफिशियल थे डिस्ट्रिक्ट के, वो कौन थे, कलेक्टर थे। इनकी मेन जॉब क्या थी, टू कलेक्ट रेवेन्यू and taxes and maintain law and order with the help of judge, police officer and darogas. From 1772 एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश हुआ, जिसमें 2 कोर्ट्स थे, वन इज सिविल कोर्ट जिसे हम दीवानी अदालत कहते हैं, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजदारी अदालत कहते हैं। मौलवीज और पंडित जो थे वो लॉज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे, right, and the criminal court was still under Qazi. The Pandits have different interpretation of local laws based on Sanskrit texts. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits together compiled a digest of Hindulu. Then what happened? They translated into English for the benefit of European judge. Under Regulating Act of 1773, a new Supreme Court, एक नया Supreme Court establish करा गया कलकत्ता में for over a period of time. फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, एक रेगुलर पुलिस फोर्स इन्होंने मेंटेन करी, एंड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपकी ड्यूटीज कैरी आउट करता था, एंड ही इज नोन एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, और जो थाने का इंचार्ज होता है उसे हम दरोगा कहते हैं, स्टेशन ऑफिसर होता है, एंड द विलेजर सिटीज में आपके चौकीदार और कोतवाल्स होते हैं। द पुलिसमैन वर नॉट वेल पेड और दे वर करप्ट। नाउ कंपनी आर्मी, जो मुगल आर्मी थी, इट वॉज कम्पोज ऑफ कैलबरी, मतलब सवार्स, ट्रेन सोल्जर्स, इन्फ्लेंट्री जिसमें आपके पैडल फुट सोल्जर्स, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप कैसे आर्चरी का यूज करोगे, स्वार्ड का यूज करोगे, एंड दे डोमिनेटेड व्हाट द आर्मी एंड द मुगल्स डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ प्रोफेंस ट्रेन्ड इन्फेंट्री। लोकल जमींदार्स ऑफ्टन सप्लाइड मुगल्स विद पैडल सोल्जर्स, एंड द मुगल सक्सेसर स्टेट्स कौन थी, अवंती, बनारस थी। उन्होंने क्या करा, इन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट करा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉलोड बाय रेजिंग आर्मी, जिसको हम सिपाही आर्मी कहते हैं, सिपाही सोल्जर। As warfare technology changed from 1820, infantry regiments become more important. Now the army used muskets, मतलब heavy guns, and matchlocks, an early type of gun which was used to powder and ignite by a match. So British began to develop a uniform military culture, and soldiers were given European style training to the latest arms. And what happened? They regulated the life far more than before. So Indian formed a majority of the British army here. फिर आता है आपका ICS, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ प्रोविंस दैट इज नीडेड बाय द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कंपनी गॉट देयर एजुकेटेड वेस्टर्न स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अर्लियर द डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के वो यंग रिक्रूट्स थे, राइट। ट्रेनिंग लंदन में होती थी आफ्टर 1853, और जो सबऑर्डिनेट्स पोस्ट थी आपको वो देखने को मिलती है। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ICS एग्जाम को क्वालिफाई करा था, और ही वाज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ राइज ऑफ बिग कॉलोनियल पावर, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन, क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है होल्ड ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडिया। सो 1857 में कंपनी ने क्या करा, डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करा, और 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड इट इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय रिमेनिंग टेरिटरी, and the company had the whole of India under his direct control. So जो अब ईस्ट इंडियन कंपनी थी उनके पास बिग कॉलोनियल पावर थी rather than trading company, and more Britishers and their family they began to come on far off places. Earlier it took 6 to 8 months and there was 3 weeks also. So this was all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.